हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको ये तो मालूम होगा, एवरीवन यू ऑल नो दैट द प्लेस वी ऑल हियर वी लिव इन and surround us surrounded by air, water and land. Okay, the place there, or we can say the earth in which we live in, is surrounded by air, water, land and mountains and roads and everything human made structures also. Okay, so all these made our environment. So now what is do you mean by environment? What the term environment literally means? Okay, so now we are going to study this only, our chapter environment. Okay, so what do you mean by environment? Environment literally means the places, the people and the things that surround any living organisms. And now what are the living organisms? The humans only. The most vital living organism is humans only. Leave aside animals. Okay, so the places, the people and the things that surround any living organisms made a environment. Okay, so I'm writing here the definition. The place, the people, the things that surrounds any living organism. Is called environment. Okay, so that is the basic definition of environment. You will find this definition in class 7th NCERT in the geography book. Okay, and the environment means it is a combination of both natural as well as man-made phenomena also. Okay, natural phenomena means the air, the water and the life support systems. Okay, the plants also, the animals also. Okay, microorganisms also. And man-made phenomena means the roads, the buildings and the humans man-made structures. Okay, and if we look at the case studies, in the few years back, or we can say almost 20 to 25 years back, the region around the Ghaziabad, Delhi, Noida, NCR and Ghaziabad, it was just a barren land. Okay, it was just a barren land. The areas near the Ghaziabad, Noida, Delhi NCR, okay, they were just a barren land. But now they are the main hubs. Okay, they are the smart city here, and we can say they are the digital hubs. Okay, of this country. Okay, so we can say that the environment changes very fast there. Okay, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उस जगह का बदल गया. तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि उनका बेसिक प्लेसेस, पीपल, थिंग, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी ह्यूमन लाइफ का इन्वायरमेंट था, वो सारी चीजें बदल गया, यानी अफेक्ट कर गया. ओके, सो in the environment there are two main key components. Okay, when we look at the environment is made up of two key components. Okay, the number first is biotic, and number second is abiotic. Now, what is biotic? Biotic, as the name already itself means, bio means the living.
So bio means living. Okay, so it includes all the living organisms. Okay, biotic components include all the living organisms. What are the living organisms? For example, plants, animals, and humans also. They all constitute environment. Okay, biotic part, they are the biotic parts of our environment, biotic components of our environment, and abiotic are the non-living elements of the environment. They are the non-living elements of the environment. Okay, but natural also. Okay, like land, water, air. Okay, so natural environment is made up of two key components, the biotic as well as abiotic. Okay, so land, water, and air, these are the naturally made, but they are the non-living elements. Okay, means they do not have a life. Okay, and the biotic components are the living organism, means they have a life. Okay, now in the previous classes, when we are studying classic geography, you must have heard of the we have discussed about the lithosphere, hydrosphere. Okay, they are the what components of the earth only. Okay, they are the components of the earth. Okay, they also constitute the environment. Okay, the lithosphere, the hydrosphere, and as well as atmosphere. Okay, if we have not discussed it, then we are going to discuss it today. Okay, so one more thing I have to tell you that environment constitute the basic support system. Okay, basic support system, it is the basic support system of our life. Okay, and environment is very useful to humans as well. Without the environment, means without the this air, land, water, or we can say natural environment, we cannot sustain. Okay, so it is the most crucial element of a human life. Now, and when we are talking about the natural environment, then we will look into the various forms of natural environment that constitute the earth. Okay, number one is lithosphere. Oh, sorry, one more thing before starting this. The environment, the term environment, what is the source of this word environment? Can anybody tell me that what is the source? What does the word environment means? Okay, so the word environment has been derived from the French word, which means environner, environment, derived from the French word environment, environner, which means neighborhood. Okay, have you all understood that now why we use the term environment and what is the source of this word term environment? Okay, now let's move on further. So now let's discuss the components of the earth environment. Number first is lithosphere. In further classes, we will study more deeply about the lithosphere and the atmosphere and the hydrosphere also. Okay, I'm just giving you a snapshot of this. Okay, or you can say just a little idea about what do you mean by the term lithosphere. So lithosphere literally means, see, lith means in something hard. Okay, so it means the hard top layer of Earth's surface. ओके, लिथोस्फीयर का मतलब है यानी हार्ड टॉप लेयर, या हम कह सकते हैं रॉकी लेयर. ओके, यानी लेयर मेड अप ऑफ रॉक्स. ओके, यानी हार्ड टॉप लेयर है अर्थ सरफेस की. ठीक है, सॉलिड है, टाइप से सॉलिड क्रस्ट है. जब हम लोग लिथोस्फीयर में आगे पढ़ेंगे तो लिथोस्फीयर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, द क्रस्ट एंड देन कोर देन मेंटल. ओके, सॉरी, क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर. ओके, अभी के लिए इतने जानिए कि हार्ड टॉप लेयर है. हार्ड टॉप लेयर मतलब सॉलिड क्रस्ट इसको कह सकते हैं. इट वाज सॉलिड क्रस्ट.
ओके, सो इट इज अ हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये लिथोस्फेयर जो होता है पूरा जो है मतलब क्रस्ट जो है यानी पूरी लिथोस्फेयर अर्थ सरफेस, ठीक है, किससे बनी है? रॉक्स और मिनरल से, ठीक है, एंड कवर्ड विथ थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रॉक्स एंड मिनरल से बनी है, ऊपर से एक परत जो है किसकी है? सॉइल की, यानी एक लेयर ऑफ सॉइल से पूरी ये बिछी हुई है, ठीक है, कट विथ थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वो भी हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलिवियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल, ठीक है, ये सारे सॉइल्स के डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स हैं। ओके, सो लिथोस्फेयर में इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब लिथोस्फेयर में वेरियस लैंडफॉर्म्स भी आते हैं, ओके। और लिथोस्फेयर रेगुलर सरफेस नहीं है, मतलब हर जगह आपको चिकनी जमीन नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी थी भी नहीं, ये एकदम साफ जमीन नहीं थी, तो रोड हम लोगों ने एकदम चिकने बना दी है, इंडिया में तो है भी नहीं, ठीक है। सो ये सरफेस जो है लिथोस्फेयर का रेगुलर नहीं है, मीन्स एकदम साफ चिकना नहीं है, इरेगुलर सरफेस है, ओके। सो लिथोस्फेयर इज एन, और वी कैन से इरेगुलर सरफेस, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस ही किए थे, लैंडफॉर्म्स, प्लेन्स, प्लेटूज, वैलीज, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। इरेगुलर सरफेस विद लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने जितने भी टाइप के थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे अच्छे से, ओके। सो लिथोस्फेयर बहुत बेसिक होता है, ठीक है, इट इज प्रोवाइड्स अ वेरी मच मिनरल्स, ओके। The lithosphere provides us with minerals and as well as the basic life support also, okay, कि जिस पे हम लोग रहेंगे, हम लोग किस पे रहते हैं? हम लोग अर्थ सरफेस पे ही रहते हैं, यानी लिथोस्फेयर यानी जमीन पे ही रहते हैं, ठीक है। और ये हम लोग को प्रोवाइड करता है सारी हम लोग की जरूरत है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस द बेसिक नीड, लिथोस्फेयर प्रोवाइड अस द बेसिक नीड्स लाइक फॉरेस्ट ऑल्सो, द life support system also, plants also, okay, various types of nutrition, plants also, ठीक है, the medicines also, okay। नेक्स्ट आता है हम लोगों का जो हम लोग इन्वायरमेंट में नेक्स्ट वो आता है हम लोगों का हाइड्रोस्फेयर, ओके। हाइड्रोस्फेयर में इतना ही समझ ली कि इट इज अ डोमेन ऑफ वाटर सरफेस, ठीक है, कि जो वाटर सरफेस है यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाटर फॉर्म्स जो हैं, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ओशंस पढ़ेंगे और सीज पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, पॉन्ड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने लैंडफॉर्म्स ही से पढ़े थे लास्ट टाइम पे, क्लास 6 में हम लोगों ने भी हाइड्रोस्फीयर नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में जब ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड्स, रिवर भी पढ़ेंगे, सो ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, यानी डोमेन ऑफ वाटर, यानी वाटर सरफेस भी कह लें या वाटर कह लें, ठीक है। यहाँ पे भी लाइफ सिस्टम रहता है, ठीक है, ये भी बहुत क्रूशल है, ठीक है। जितना लिथोस्फीयर क्रूशल है उतना हाइड्रोस्फीयर भी क्रूशल ही है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ सिस्टम के लिए या एक एनवायरमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। What do you mean by atmosphere? See, there is a very basic, मतलब इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एयर एंड एटमॉस्फेयर। हवा और जिसको हम लोग हवा यानी एयर वो होता है, और एटमॉस्फेयर मतलब हवा पानी, जिसको हम लोग हिंदी में अपने जबान में कह सकते हैं कि हवा पानी। तो हवा और हवा पानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है, that
surround the earth. Okay, so atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. बहुत ही पतली परत होती है एयर की, हवा की, जो कि पूरे अर्थ को सराउंड करती है, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर यानी जो एयर होते हैं अलग अलग टाइप्स के, मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, द वेरी फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर अगर अर्थ पे है, ठीक है, तो रुकी कैसे है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर पे जो है तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, आई होप आप लोगों ने जब साइंस पढ़ी होगी फिजिक्स की 7th या 6th में, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आपने जरूर पढ़ी होगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या करती है, होल्ड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द एटमॉस्फेयर इन द अर्थ। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको पता ही होगा, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी हम लोग अभी खड़े भी क्यों हैं, ठीक है। या अगर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग ये उछालते हैं कोई भी एक, ठीक है, यानी ये अगर उछाले तो ये वापस जमीन में ही आके गिरेगा। इसका मतलब है कि कोई एक फोर्स है, अर्थ की एक फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रही है सारी चीजें अपनी तरफ, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी यही है, ठीक है। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को भी रोक के रखी है अर्थ सरफेस पे, अट्रैक्ट करती है अर्थ सरफेस को, ठीक है। मतलब सॉरी, एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करती है अर्थ सरफेस की तरफ, ठीक है। एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग बायो में पढ़ते हैं, वो है बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये सारे स्फीयर्स हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द वेरी थिन component of we can say the environment, okay। so it is a narrow area, ठीक है। नैरो एरिया, नैरो जोन है जहां पे लैंड, एयर, वाटर तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ओके। सो बायोस्फीयर इज द इट इज अ नैरो जोन, बहुत ही पतला जोन है, ठीक है। नैरो जोन वेयर एयर, वाटर, लैंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, यही मिला के बायोस्फीयर बनता है, ओके। सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 स्फीयर्स, ठीक है। बेसिकली तो 3 होते हैं, लेकिन 4 मैंने बता दी क्योंकि 4 भी एक स्फीयर ही है, और बायो में मोर और लेस ये हम लोग पढ़ेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इकोसिस्टम। क्या है ये इकोसिस्टम? आपने देखा होगा जैसे कि अगर यूपी का क्लाइमेट ले लें, सो व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ यूपी दीज डेज? इट इज गोइंग मोर लेस, इट इज वेरी कोल्ड हियर, वी कैन से above 5 डिग्री सेल्सियस, वी कैन से 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इट इज वेरी कोल्ड हियर, ठीक है। बट व्हाट इज द सो द क्लाइमेट हियर इज वेरी कोल्ड, ओके। सो द वेजिटेशन हेयर ऑल्सो इट इज। अब इस सीजन पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब यूपी के अगर हम लोग देखा जाए तो वेजिटेशन क्या होगा, वेजिटेशन भी हम लोग पढ़ेंगे अगले में, ठीक है। यानी फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। किस टाइप का वेजिटेशन होता है यूपी में? इट इज अ प्रोड्यूसिंग, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। यूपी क्या है, फूड प्रोड्यूसिंग ही स्टेट है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में गर्म है होती है, ठीक है। हम लोगों में मोस्टली साल के 10 महीने गर्म ही होती है, तो राजस्थान में मोस्टली ह्यूमिडी, मतलब एक हॉट क्लाइमेट रहता है राजस्थान में। तो राजस्थान के भी फ्लावर, मतलब वहाँ का वेजिटेशन क्या है, वहाँ पे फ्लोरा फाउना, कि वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट देखने को मिलते हैं, थॉर्न्स और श्रब देखने को मिलते हैं। और वहीं आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपको 12 मासा बारिश ही मिलेगी। द वेटिएस्ट प्लेस इन इंडिया वी कैन से द अर्थ इज मौसिनराम, ठीक है, इन मेघालय, ठीक है।
तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो अलग अलग क्लाइमेट, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग प्लांटेशन और फॉरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, क्लाइमेट अलग अलग है, ठीक है। तो यही सब इकोसिस्टम में भी आता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इकोसिस्टम। सो व्हाट वी कैन से इन द इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम। सो एक टाइप से सिस्टम है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय एन इंटरैक्शन, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। यानी ये इकोसिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जो कि इंटरैक्शन से बनता है। किसका इंटरैक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरैक्शन होता है, मींस ह्यूमन इंटरैक्शन भी जो हो रहा है, और प्लांट्स इंटरैक्शन, एनिमल्स इंटरैक्शन जो हो रहा है, ह्यूमन का एनिमल से हो रहा है, अगर एनिमल का एनिमल से भी हो रहा है, अगर ह्यूमन का ह्यूमन से हो रहा है इंटरैक्शन, ठीक है, एन इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड विथ केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो, यानी केमिकल्स और फिजिकल फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, ठीक है। और ये किससे लिंक्ड है, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। यानी इकोसिस्टम में एक सिस्टम है जो कि इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें इंटरेक्शन होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मींस ह्यूमंस टू ह्यूमंस और ह्यूमंस टू एनिमल का इंटरेक्शन होता है, और इसमें केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स भी एनवायरनमेंट के जो है ये भी पार्ट लेते हैं, ऑल लिंक्ड। और ये सब लोग आपस में जुड़े कैसे हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। बायो में जब हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फूड चेन, एक टाइप से बायो में हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली फूड चेन पढ़ते हैं हम लोग कि फूड चेन क्या होता है, ठीक है। मीन्स द वी कैन से द बेसिक इज प्लांट, ओके, द बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट, द वेयर डू प्लांट्स गेट द फूड फ्रॉम, प्लांट्स गेट द फूड फ्रॉम द सन एंड through photosynthesis, and animals, the deer, we can say the deer, what do the deer eat, deer eat the plants only, or we can say grasses only, and the lion, okay, deer is eaten by a lion, ठीक है, और we can say, ठीक है। तो ये सारे एक टाइप से फूड सिस्टम, एक फूड चेन बन जाती है, ठीक है, वेब बन जाता है, फूड वेब या फूड चेन बन जाती है, ठीक है। तो ये आपस में लिंक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल भी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ह्यूमंस को भी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वी कैन से, ठीक है, ह्यूमंस को भी इसी से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, मींस सन से ही एनर्जी मिलती है, ठीक है, सन इज द मोस्ट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सब मिला के कॉन्स्टिट्यूट होता है इकोसिस्टम, ओके। सो इस चैप्टर में हम लोगों को इतनी ही पढ़ना है कि हम लोगों ने बेसिक टर्म्स जाने, इन्वायरमेंट जाने कि इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ इको इन्वायरमेंट जो पढ़े, जो कि अर्थ में है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जो कि ये सारे इन्वायरमेंट बनाते हैं मिलके, एटमॉस्फेयर भी, बायोस्फेयर भी, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग ये जो लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया, इसको हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस क्लास में, मतलब 7th में, आगे और 11th में इसका और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो ट्राई टू कमेंट द आंसर, ओके, इन द कमेंट सेक्शन ओनली, ओके।